یہ ایمان والی میری بہن، اللہ رب العزت نے 27 رجب کو اپنے محبوب کو جلوہ دکھایا، ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ رب العزت کا دیدار کرنا کسی عام آنکھوں کا کام نہیں، یہ کملی والے ہی آنکھیں ہیں جس کی تعریفیں پھر اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، یہ ما زاغ کی آنکھیں ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہے سبحان اللہ۔ کسی عام آنکھ کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں جو رب کا دیدار کر سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بار بار اصرار کر رہے تھے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے، ایک بار نہیں کہا، اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، لن ترانی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھائیے، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، وہ آنکھیں نہیں ہیں جو میرا جلوہ نور دیکھ کر برداشت کر سکو، موسیٰ تو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے کلیم نے 9 مرتبہ کہا، پھر اصرار کیا، 9 مرتبہ کہا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دیجئے، اللہ میں نے دیکھنا ہے، جس کے کلام میں اتنی حتیٰ کہ مٹھاس ہے اس کے دیدار کا عالم کیا ہو۔ اللہ سے جب کلام کرنے کے لیے جاتے تھے نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر، کہتے ہیں جس کے کلام میں اتنی مٹھاس ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا، اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اگر اصرار کر رہے ہو تو کوہ طور کی پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو جانا، اس پہاڑ کے اوپر میں اپنے 70,000 پردوں کے بیچ سے اپنا جلوہ دکھاؤں گا، اپنے جلوے کے صرف ایک جھلک دکھاؤں گا اور وہ بھی 70,000 پردے کے اندر سے دکھاؤں گا۔ ذرا ایمان سے سنے وہ کس قدر نور ہے، وہ کس قدر ایمان والی بہنوں جلوہ ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں 70,000 کی بات نہیں بلکہ کئی ہزار پردوں کی بات کی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اس کوہ طور کی پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اگر 70,000 پردوں کے بیچ سے کوہ طور کی پہاڑی پر میں اپنے جلوے کا عکس دکھاؤں گا، اگر یہ پہاڑ دیکھ کر تاب لا سکا تو پھر تجھے دیدار کروا دوں گا۔ جب اللہ نے 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک کہ اپنے جلوے کی ایک عکس دکھایا تو مفسرین لکھتے ہیں کوہ طور حتیٰ کہ وہ پہاڑ جل کر ایمان والی بہنوں راکھ بن گیا، جسے آج سرما سمجھ کر لگایا جا رہا ہے، جسے آج سرما سمجھ کر ہم لگاتے ہیں، یہ وہ پہاڑ تھا جب اللہ نے اپنے جلووں کا عکس دکھایا تو پہاڑ بھی تاب نہ لا سکا، اس قدر نور تھا کہ وہ شعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں چہرے پر پڑی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے دیدار کا یہ عالم تھا سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ پر دیکھا جس پہاڑ پر اللہ نے 70,000 پردوں کے بیچ سے اپنا عکس دکھایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اتنے نور کے تجلیاں نظر آنے لگی کہ جو بھی کوئی آپ کی امت میں سے آتا کہ جو لوگ بھی کوئی دیکھتا تھا تو کہتے ہیں علماء کرام لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ نابینا ہو جاتے تھے، کیونکہ چہرے پر نور ہی اتنا نظر آ رہا ہوتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چہرے پر پردہ ڈالا۔ علماء کرام کیا لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چہرے پر پھر پردہ ڈال لیتے کیونکہ جو بھی دیکھتا وہ نابینا ہو جاتا۔ ایک دن بیوی کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام پردہ ہٹائیے، میں نے آپ کا چہرہ دیکھنا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کو حتیٰ کہ جو 70,000 پردوں کے بیچ سے دیکھ کر آئے ہو، میں ذرا آپ کے چہرے کا جلوہ دیکھنا چاہتی ہوں، چہرے کا جلوہ کس قدر ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں صفورہ نہیں، نابینا ہو جائے گی، تجھے پتا ہے جو بھی دیکھتا ہے نابینا ہو جاتا ہے۔ سب حضرت صفورہ فرماتی ہیں نہیں، میں نے دیکھنا ہے، چلے میں ایسا کرتی ہوں کہ ایک آنکھ پر اپنا ہاتھ رکھ لیتی ہوں، ایک آنکھ سے دیکھ لیتی ہوں، اگر ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی تو دوسری آنکھ تو ہوگی۔ اب حضرت صفورہ کی آنکھ حلقہ کے محبت کا عالم یہ تھا کہ میں بھی اس رب کی تجلیوں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے چہرے پر ایک آنکھ پر ہاتھ رکھا اور ایک آنکھ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا سبحان اللہ۔ جب آپ کی بیوی کہتی ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایک آنکھ سے نظر ڈالی تو فوراً ہی اس قدر نور، اس قدر شعائیں کہ ایک آنکھ
ख़त्म हो गई, नबीना हो गई, नजर आना बंद हो गया। अब बर्दाश्त न हुआ, फरमाया कि मैं दूसरी आंख से भी आपका चेहरा देखना चाहती हूँ। अल्लाह के नूर की इस कदर तजलियां नजर आती हैं। ईमान वाली बहनों, जिस पहाड़ को हज़रत मूसा देखकर आए, उनकी चेहरे का आलम ये था, सुभान अल्लाह। अब हजरत सफूरा ने दूसरी आंख से भी अल्लाह के पैगंबर को देखा तो दोनों आंखें नबीना हो गई। हजरत मूसा फरमाते हैं, सफूरा मैंने कहा था ना नबीना हो जाओगी, आंखें से नजर आना बंद हो जाएगा, क्यों देखा, अब रोती क्यों हो? हजरत सफूरा रो रही थी। फरमाते हैं कि अब रोती क्यों हो, मैंने मना किया था, नहीं देखो नबीना हो जाओगी, क्यों रो रही हो? हज़रत सफूरा फरमाती हैं, उस रब की तजल्लियों पर मैं कुर्बान हो जाऊं, ये तो सिर्फ मैं आंखों की वजह से नहीं रो रही, आंखें की बेनाई खत्म हो गई है, इस वजह से नहीं रो रही, इस वजह से रो रही हूँ कि ये सिर्फ 2 आंखें अल्लाह ने दी हैं, काश मेरी 1000 आंखें होती तो मैं ये नूर देखकर कुर्बान कर देती। मैं ये अल्लाह की तजल्लियों का जो आपके चेहरे पर नूर नजर आ रहा है, यही देखते देखते मैं 1000 आंखें ही कुर्बान कर देती, सुभान अल्लाह। अब ईमान वाली बहन जरा गौर से सुनिएगा, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अता कि ये आलम है कि जो भी कोई चेहरे को देखता है तो ये नाबीना हो जाता है, तो फिर मोहम्मद के चेहरे का आलम क्या होगा? जब हजरत मूसा की बारी आती है, अल्लाह फरमाता है नहीं देख सकता, तू मुझे नहीं देख सकता, तो ये कलीम है। यहाँ से पता चला कलीम और होता है जो कहता है जलवा दिखा, और हबीब वो होता है जो चादर तान कर सो जाए, अल्लाह जगाने के लिए जिब्राइल को भेज रहा है। पता चला कलीम और होता है, हबीब और होता है, सुभान अल्लाह। आइए मेरी ईमान वाली बहनों, हुजूर 27 रजब की रात मुजम्मल वाले चादर ओढ़कर सो रहे थे, सुभान अल्लाह। ऐसी ठंडी हवा चल रही थी, उलमा किराम लिखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ठंडियां हवाएं चला दी कि मेरे आका करीम को भी नींद मुबारक गहरी आ गई, सुभान अल्लाह। अब जिब्राइल जमीन पर आते हैं, ये वो जिब्राइल हैं जो एक पर खोले तो पूरा मशरिक ढक जाता है। तो जिब्राइल अंदर पहुंच जाते हैं, आकर सरकार के कदमों के पास बैठ गए। अल्लाह महबूब सो रहा है, अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल खबरदार आवाज नहीं देनी, यार की नींद खराब हो जाएगी। जिब्राइल फरमाते हैं मेरे बारी ताला तेरा महबूब सो रहा है, आवाज नहीं दूंगा, जगाऊंगा कैसे? रब्बे कायनात ने फरमाया ओ जिब्राइल क्या हुआ, तू फरिश्तों का उस्ताद है, क्या हुआ तू फरिश्तों का सरदार है, क्या हुआ तू जिब्राइल अमीन है, सिदरातुल मुंतहा पे रहने वाला है, तेरा मकाम बेशक आला है, लेकिन याद रखना जिब्राइल तेरे लब मैंने काफूर के बनाए हैं, मोहम्मद के तलवे मैंने नूर के बनाए हैं। अपने लबों से मेरे मोहम्मद के कदमों को चूमना शुरू फरमाओ। अल्लाह अकबर। जिब्राइल ये नूरी फरिश्तों का सरदार हुजूर के कदम चूम रहा है। ईमान वाली मेरी बहनों के परिवार के कदमों को ठंडक महसूस हुई। नबी करीम जाग पड़े, फरमाया जिब्राइल कैसे आए हो? फरमाया या रसूलल्लाह जल्दी तैयार हो जाओ, आज अल्लाह इंतजार फरमा रहा है, आज अल्लाह इंतजार फरमा रहा है। तो मेरे सरकार तैयारी कैसे करते हैं? जिब्राइल ने वो अमामा अता फरमाया जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 1000 पहले से तैयार कर रहे थे फरिश्ते। सुभान अल्लाह, तवज्जो है ना सबकी। जिब्राइल वो अमामा हुजूर के लिए लेके आए कि ये तैयार होकर ये सर पे करना है, ये आम नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाबा आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 1000 पहले फरिश्तों से बनवाया। याद रखना, पता चला जब जमीन आसमान में कुछ भी नहीं था तब भी मोहम्मद का नूर था। सुभान अल्लाह। ये मकीनो मका बने तो बस तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। ये जमीनो जमा बने तो बस तुम्हारे लिए, है दहन मुंह में जुबान तो बस तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तो बस तुम्हारे लिए, कल उठेंगे वहाँ तो बस तुम्हारे लिए। पता चला ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब कुछ भी जमीन आसमान में नहीं बना था, मोहम्मद का नूर अल्लाह ने सबसे पहले बनाया था। ये अमामा बाबा आदम के पैदा होने से 1000 पहले से फरिश्ते तैयार कर रहे थे। आज वो मेराज की रात जिब्राइल लेकर हुजूर की बारगाह में आते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर ने तैयारी की, तवज्जो से जरा समात फरमाएंगे। अब हुजूर तैयार होकर सवारी पर सवार होते हैं। सवारी कौन सी है?
वो बुराक सरकार फरमाते हैं जिसका कद छोटा था, खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था। वो बुराक उसका चेहरा इंसानों की तरह था, वो बुराक उसके पर थे। और सरकार फरमाते हैं जब मैं सवारी पर सवार होता हूँ उसकी रफ्तार ऐसी थी कि जहाँ उसकी निगाह जाती वही कदम चला जाता था। सुभान अल्लाह। अब सरकार सवारी पर सवार हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगाम भेजा, जिब्राइल मस्जिद अक्सा में सब नबियों को हुक्म सुनाओ, हाथ बांध कर खड़े हो जाओ, इमाम नमाज पढ़ाने के लिए। अजान पढ़ी जिब्राइल ने, और सब नबियों में से अल्लाह ने फरमाया जो सबसे खूबसूरत लगे उसी को कह दो कि वो ही नमाज पढ़ाएगा। अब जिब्राइल ने देखा, जमीन आसमान में देखा, कायनात में ढूंढा, पर मोहम्मद जैसा हसीन नजर नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? हसीना जमीला दा मुंह मोड़ छड़िया, अल्लाह मोहम्मद बना के कलम में तोड़ छड़े आए। सरकार को देखा, जिब्राइल कहते हैं आका आप ही नमाज पढ़ाई, क्योंकि मुझे अल्लाह ने फरमाया जो सबसे खूबसूरत लगे, लेकिन मेरी आंखों ने आज तक तुम्हारे जैसा खूबसूरत देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। आप ही नमाज पढ़ाइए। अब सब नबियों ने नमाज अदा की, तो शार ने क्या लिखा? नमाज अक्सा में जब पढ़ाई तो अंबिया रसूल ये बोले, नमाज अक्सा में जब पढ़ाई तो अंबिया रसूल ये बोले, ना नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो हुजूर जैसा। ईमान से कहते हैं सुभान अल्लाह। सब अंबिया रसूल ये बोले। जब हुजूर ने नमाज पढ़ाई तो अंबिया क्या कहते हैं? नमाज हो तो नमाज ऐसी हो, इमाम हो तो हुजूर जैसा हो। सुभान अल्लाह। तो याद रखना माशार ने क्या लिखा? बिलाल तुझ पर निसार जाओ कि तुझे नबी ने खुद खरीदा, बिलाल तुझ पर निसार जाओ मेरे नबी ने खुद खरीदा, बिलाल तुझ पर निसार जाओ कि तुझे नबी ने खुद खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। कुरान के है वो गारे जो लोग नेज़ा पर ये बोले, सिवा खुदा के न सर झुकाना, के सिवा खुदा के न सर झुकाना, दिया जहां को पैगाम ऐसा, सिवा खुदा के न सर झुकाना, दिया जहां को पैगाम ऐसा। ईमान से बोले सुभान अल्लाह। याद रखना नमाज अक्सा में जब पढ़ाई अंबिया रसूल ये बोले, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो हुजूर जैसा। अब वो अंबिया भी दोबारा ख्वाहिश कर रहे थे। क्या ख्वाहिश कर रहे थे? अल्लाह ऐसी घड़ियां दोबारा भी ला दे, अल्लाह ऐसा मौका दोबारा भी आ जाए कि तेरा मोहम्मद दोबारा भी नमाज पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह। अब सरकार फरमाते हैं वहीं से सवारी आसमानों की तरफ जाने लगी। सुभान अल्लाह। दरवाजा जिब्राइल जाकर पहले आसमान का दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है कौन आए हो? फरमाया जिब्राइल हूँ, पहले आसमान पर थे। हुजूर फरमाते हैं जिब्राइल ने कहा कि मैं जिब्राइल हूँ। फरमाया साथ कौन है? फरमाया साथ आज मोहम्मद मुस्तफ़ा आए हैं। यहाँ उलमा कराम लिखते हैं कि यहाँ पर हत्ता के फरिश्तों के सरदार से पूछा जा रहा था कि कौन हो? क्या फरिश्तों को पता नहीं था हमारा सरदार बाहर आया है? लेकिन याद रखना यहाँ गौर करने का जुमला है, अल्लाह ने आसमान के करोड़ दरवाजे बनाए, लेकिन वो दरवाजा एक ऐसा रखा जहाँ सबसे पहले मोहम्मद तशरीफ लाएगा। एक ऐसा दरवाजा था जहाँ से पहले कोई नहीं गुजरा था। वो दरवाजा सरकार के लिए पहली मर्तबा ही खोला गया
गया था। फरमाया आवाज आती है कौन आए हो? फरमाया जिब्राइल। फरमाया साथ कौन है? जिब्राइल फरमाते हैं मोहम्मद मुस्तफा है। फिर दरवाजे खुलते गए, बाबा आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखा मेरे हुजूर ने। फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दाईं तरफ देखते हैं मुस्कुरा रहे होते हैं, तो बाईं तरफ देखते हैं गमज़िदा होते हैं। हुजूर फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम को, ए बाबा जान क्या राज है? इधर देखते हो खुश होते हो, इधर देखते हो गमज़िदा होते हो, ये क्या है? बाबा आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मोहम्मद अरबी, जब दाईं तरफ देखता हूँ वो मेरी नेक औलाद नजर आती है तो खुश हो जाता हूँ, जब बाईं तरफ देखता हूँ तो वो मेरी गुनाहगार औलाद में से जो गुनाहगार हैं वो नजर आते हैं, तब गमज़िदा हो जाता हूँ। अब सरकार ने बाबा आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई। जब दूसरे आसमान पर गए, फिर फरिश्ते दरवाजे खोलते रहे, फरिश्ते इस्तकबाल करते रहे। ईमान वाली बहनों, हत्ता के सरकार जन्नत के अंदर तशरीफ ले गए, सुभान अल्लाह। उसके बाद सिदरातुल मुंतहा पर पहुंचे। सिदरातुल मुंतहा एक ऐसी जगह है, उलमा कराम लिखते हैं जहाँ एक दरख्त ऐसा है जो बेरी की तरह का है और उसके पत्ते इतने बड़े हैं जैसा कि हाथी के बड़े कान होते हैं, इस तरह उसके दरख्त के पत्ते हैं। और वहाँ पर सरकार ने फरमाया मैंने दो कुर्सियाँ देखी, सिदरातुल मुंतहा पर दो कुर्सियाँ देखी। एक कुर्सी ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा बड़ी थी और एक बिल्कुल छोटी थी। अब सरकार ने फरमाया कि जिब्राइल यहाँ दो कुर्सियाँ हैं, बड़ी किसके लिए है, छोटी किसके लिए है? जिब्राइल फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बड़ी कुर्सी बनाई वो मोहम्मद आपके लिए ही बनाई है। ये सबसे बड़ी जो कुर्सी पड़ी है, यहाँ हुजूर आप तशरीफ फरमा कर बैठे, तो पता चला वहाँ जो बेरी नुमा के दरख्त है, बेरी की तरह का है। उलमा कराम लिखते हैं उसके पत्तों के ऊपर इतने उसके पत्ते थे और एक एक पत्ते के ऊपर फरिश्ते हुजूर का दीदार कर रहे थे। वहाँ पत्तों के ऊपर फरिश्ते हुजूर का दीदार कर रहे थे, सुभान अल्लाह। वहाँ सब फरिश्तों ने सरकार का दीदार किया, सुभान अल्लाह। अब अता के सब जानते हैं, पहले भी अपने सुना है किस तरह ये हुजूर मेराज पे गए, रब का दीदार किया। जब सरकार मेराज से वापस आ गए, सुभान अल्लाह। आज मैं आपको ये सुनाऊंगी कि सरकार मेराज से वापस आए तो ईमान वाली बहनों तहज्जुद की घड़ियाँ थी, सरकार अल्लाह का दीदार करके वापस आए। ईमान वाली बहन गली में से गुजर रहे थे कि अचानक एक बुढ़िया नजर आती है। बुढ़िया बहुत रो रही है, वो बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा रो रही थी। अल्लाह अकबर। सरकार वहां पर रुके, गली में से पूछा अम्मा जान क्यों परेशान है, क्यों रो रही है? आओ, अगर हमारे यहाँ तो आजकल दुनिया का दस्तूर ये है, अगर बादशाह से मुलाकात हो जाए तो दिन को नाज बदल जाते हैं। रात को हमने फलां बादशाह से मुलाकात की है, लेकिन सरकार की आजिज़ी का ये आलम है, सरकार रब का दीदार करके आए हैं। उस बुढ़िया औरत से, कनीज से, गुलाम से पूछ रहे हैं माई क्यों रो रही है, क्यों परेशान लग रही है? उसने कहा बुखार बहुत तेज है, सामान उठाने वाला कोई नहीं है, सामान उठवाकर सर पे रखवाने वाला कोई नहीं है। अपने मालिक से एक छुट्टी लेकर आई थी, लेकिन बुखार ज्यादा था तो छुट्टियां दो कर बैठी हूँ, अब रो रही हूँ। मेरा मालिक काम पे नहीं रखेगा, अगर मैंने काम ना किया तो बच्चों को कैसे पालूंगी? बेवा औरत हूँ, चार हूँ, हत्ता कि चलने की अब हिम्मत भी नहीं है, बुखार भी बहुत शदीद है। सरकार ने उसकी गठड़ी उठाई, अपने सर पे रख ली। अल्लाह अकबर। आर्जी इतनी है, अगर हमारे यहाँ कोई बादशाह से मुलाकात करे तो नाज अंदाज बदल जाते हैं, वहाँ अल्लाह का दीदार करके आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। रब को देख कर आ रहे हैं। आर्जी इतनी है, उस बुढ़िया का सामान उठाया, सरकार ने अपने सर पे रखा हुआ है। वो माई चलती चलती रुक गई, कहती है मेरे अंदर चलने की हिम्मत नहीं है। अता के सरकार ने उसको अपने मुजम्मल वाली चादर का पल्लू पकड़वाया, फरमाया इसको पकड़ो, तुम्हारे अंदर चलने की ताकत आ जाएगी। मेरी चादर को पकड़ो। मुजम्मल वाली चादर को औरत ने पकड़ा और ताकि आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई, आहिस्ता से चलती हुई सरकार के साथ जा रही थी कि जब उसके मालिक का दरवाजा आता है, उसके मालिक का दरवाजा हुजूर ने बजाया। ईमान वाली बहनों, जब नींद से कोई उठे ना तो आंखें ऐसे मसलता हुआ दरवाजे पर आता है। सरकार ने दरवाजा बजाया, उसका मालिक दरवाजे पर आता है, अपनी आंखें मसल रहा था, कह रहे कौन आए हो?
مجھے تو ایسا لگتا ہے کہیں رب کا دیدار کر کے آیا۔ اب یہودی تھا، لیکن اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ رب کا دیدار کر کے آ رہا ہے؟ اس یہودی نے سر پر گٹھڑی دیکھی اور کہا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ رب کا دیدار کر کے آیا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے تو ابھی ابوبکر صدیق سے بھی نہیں بتایا، تجھے کیسے پتا چل گیا ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے رب کعبہ کی قسم میں نے اپنی آسمانی کتاب توریت سے پڑھا تھا کہ جیسے ہی ایک آخری نبی محمد مصطفیٰ آئے گا، ایک آخری نبی آئے گا، وہ رات کو معراج کر کے رب کا دیدار کرے گا، دن کو غلاموں کی کٹھیاں اٹھایا کرے گا۔ عاجزی اتنی ہوگی اس نبی میں کہ وہ رات کو رب کا دیدار کرے گا، دن کو گٹھڑیاں غلاموں کی سر پہ اٹھایا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا یہ میرے حضور کا اخلاق ہے، اس کی تعریفیں پھر اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمائی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک میرے محبوب کا اخلاق بڑا ہی عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے اس کی گٹھڑی اٹھا تاکہ جو سر پہ اٹھا رکھی تھی وہ نیچے رکھی، فرمایا اس کو کہنا کچھ نہیں ہے، یہ دیکھو کہ اس کے ساتھ کون آیا ہے، اس کو لے کر کون آیا ہے، اب اس کو کہنا کچھ نہیں ہے۔ اس کو تیز بخار تھا، چھٹی ایک لے کر گئی تھی، 2-3 زیادہ کر بیٹھی ہے، اب اس کو کچھ نہیں کہنا۔ وہ یہودی حضور کے قدموں میں بیٹھ کر کے حتیٰ کہ خود بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن رہا ہے۔ سرکار میں نے اپنی آسمانی کتاب سے یہ پڑھا تھا وہ ایسے نبی ہوں گے جو رب کا دیدار بھی کریں گے، عاجزی اتنی ہوگی غلاموں کی گٹھڑیاں بھی دن کو اٹھایا کریں گے۔ اس یہودی کا پورا قبیلہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پتا چلا یہ کمال خاص ملا کسے، سبحان اللہ، یہ کمال خاص ملا کسے، بلغ العلا بکمالہ، یہ جمال حق نے دیا کسے، کشف الدجا بجمالہ، یہ ہوئی بھلائی عطا کسے، حسنت جمیع خصالہ، جب کہہ رہا ہے خدا جسے صلو علیہ وآلہ۔